نیوز اور خبر کا مطلب ہے اہم اطلاع۔ عوامی مسائل کو عہدیداروں اور حکومت تک پہنچانے کا اہم ذریعہ ہے نیوز۔ حقائق پر مبنی شہری، ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبریں دیکھیے میٹرو اردو خبروں میں۔ سیاسی اتار چڑھاؤ، عید اور تہوار، جرائم و حادثات، تعلیمی، ادبی اور معاشرتی سرگرمیوں کی حقیقی عکاسی کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو اردو خبریں۔ کشمیر ہاؤس بیگم بازار سن 1947 سے مشہور آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ شادی بیاہ ہو کہ ولیمہ تقاریب، کشمیر ہاؤس کے بنا ادھوری۔ اپنی دعوت کو یادگار بنائیے کشمیر ہاؤس کی شمع کلاسک باسمتی رائس، ہر برانڈ کے بریانی رائس، اصلی گرم مسالے، کرانہ آئٹمز اور ڈرائی فروٹ، ٹن فروٹس، ساسز، پینٹ کھجور، اصلی زعفران اور بری کے سودے کے ساتھ۔ کشمیر ہاؤس آپ کے ساتھ، سیدھے چلے آئیے کشمیر ہاؤس۔ یاد رکھیں کشمیر ہاؤس بیگم بازار حیدرآباد۔ شمع جو روشنی پھیلائے اور شمع باسمتی رائس ہر تقریب کی شان بڑھائے، پورے خاندان کا بھروسہ جس پر ہو اور ہر کسی کی پسند بن جائے۔ شمع کلاسک باسمتی رائس، اس کا دانہ دانہ الگ جو ہر دعوت کی لذت بڑھائے۔ 25 کلو، 10 کلو، 5 کلو اور 1 کلو کے بیگ میں اب ہر سپر مارکیٹ، جنرل سٹور اور کرانہ سٹور میں دستیاب ہے۔ شمع کلاسک باسمتی رائس۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمینہ خانم اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو اردو خبریں۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ سرخیوں کے پیش کردہ ہیں دبئی ہوم انٹیریئرز، بندر ہلز روڈ نمبر 1 نیئر کراچی بیکری۔ مجلس پارٹی کے صدر اسد الدین اویسی نے حلقہ اسمبلی نام پلی کے چندل بستی میں ترقیاتی کاموں کا کیا افتتاح۔ اے سی گارڈ میں قدیم درخت کے گرنے سے 3 مکانات منہدم، کوئی جانی نقصان نہیں۔ چندہ نگر علاقے میں نالے سے ایک نومولود لڑکی کی نعش برآمد، پولیس کو لڑکی کے ماں باپ کی تلاش۔ کانگریسی قائدین علیحدہ تلنگانہ کا جذباتی نعرہ دے کر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، وینکیا نائیڈو کا بیان۔ اور نظام کالج گراؤنڈ پر آج کانگریس کا تلنگانہ سبھا، مختلف قائدین نے اپنے اپنے انداز میں کی جلوس کی شکل میں شرکت۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر مجلس پارٹی اسد الدین اویسی نے حلقہ اسمبلی نامپلی کے چنتل بستی ڈویژن میں 4,34,94,000 روپے مالیتی کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ ان کے اس دورے میں وزارت رسول خان ایم ایل اے نامپلی، ماجد حسین میر حیدرآباد، یاسمین سلطانہ کارپوریٹر چنتل بستی کے علاوہ پارٹی کے سرگرم کارکنان محمد نصیر الدین، شیخ نظام، چھوٹو بن سلیم، حبیب، وجی اللہ بابی، سید رضوان شریک تھے۔ صدر مجلس کے اس دورے میں عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اسد الدین اویسی نے عوام کے مجموعے کو مخاطب کرتے ہوئے مجلس کے ترقیاتی کاموں پر روشنی ڈالی اور عوام کی خدمت کے لیے وقف ہونے کا عہد کیا۔ اس دورے کے موقع پر متعلقہ مختلف محکموں کے عہدیداران بھی موجود تھے تاکہ ترقیاتی کاموں کے ضمن میں ان پر عائد ہونے والی ذمہ داریوں سے بخوبی واقف ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکن اسمبلی حلقہ نام پلی مجلس اتحاد المسلمین، اراکین بلدیہ نام حلقہ اسمبلی نام پلی، صدر معتمدین، معزز اراکین مجلس اتحاد المسلمین، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ حلقہ اسمبلی نام پلی میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور بھی بہت سے کام ہونا باقی ہیں۔ میں پچھلے ہفتے تمام حلقہ اسمبلی نام پلی کے جتنے صدر و معتمدین تھے ان سب سے ملاقات کیا فردن، اور ان تمام صدر و معتمدین نے جو کمزوریاں اور جو غلطیوں کی نشاندہی کی، انشاءاللہ تعالی میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کمزوریوں کو دور کیا جائے گا، اور جہاں تک حتی الامکان میں پوری کوشش کروں گا کہ جو مسائل کی وہ لوگ نشاندہی کیے ان مسائل کو ہم دور کریں گے
साथ ही साथ मैंने सदर मुतमदीन की मीटिंग लेने के बाद अरकान बल्दिया और रुकन असम्बली जनाब राशिद साहब के साथ एक और मीटिंग हुई, जिसमें उन तमाम चीज़ों को मैंने खुलकर साफ पर्सन को बताया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे अरकान बल्दिया और रुकन असम्बली उन चीज़ों का सीरियस तौर से नोट लिए होंगे, क्योंकि मैं इस पर काफ़ी सीरियस हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छी तरह से काम अंजाम दिया जाए, क्योंकि हल्के असम्बली नामपल्ली में अगर रुकन असम्बली की कामयाबी हुई या फिर बाद में बल्दिया के इलेक्शन और अरकान बल्दिया को कामयाबी मिली, तो एक तो अल्लाह का फजल व करम है, सदक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और उसके बाद हमारे सदर मुतमदीन की बेइंतहा मेहनत जस्तजू और उनकी कुर्बानियाँ उसमें शामिल हैं। तो बेहद ज़रूरी है कि अरकान बल्दिया और मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली अगर वो अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि वो सबको अपने साथ लेकर चलें। इज्तिमाई तौर पर हम तमाम को मेहनत करने की ज़रूरत है। कोई भी काम, कोई भी जंग कोई इंफरादी तौर पर नहीं जीत सकता। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबको साथ लेकर काम करें, और मेरा शुरू से ही कोशिश यही है कि सबको साथ लेकर काम करना चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होकर रहेगा। और मैं इस पर पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो तरक्याती डेवलपमेंट के काम है हों। यकीनन पीने के पानी का मसला है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। इस सिलसिले में भी वाटर वर्क्स के अहदेदारों से मुलाकात हुई है और कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना इस तकलीफ को हम और कम कर सकते वो पूरी कोशिश हो रही है। साथ ही साथ बहुत सी जगहों पर सूरज लाइन की कमी है, इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर भी MLA साहब दिलचस्पी लेकर उन सीरीज लाइन्स के ताल्लुक से वाटर वर्क्स के गुजारों से वो पिछले 2-3 दिन से बराबर उनसे रब्त में है, और उनकी नुमाइंदगी पर बता रहे थे कि मुरादनगर वार्ड में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर नए सीरीज लाइन और पानी के जो पोल्यूशन का ही मसला है, इस पर भी इंशाअल्लाह ताला मुस्बित कार्रवाई की जाएगी। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 4 साल से बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के दरमियान में ये ऐसा नहीं है कि मजलिस इलेक्शन से 1 साल पहले हरकत में आकर एक जोगरों की तरह, बच्चों की तरह तमाशा नहीं करती। मजलिस एक जमात है और जमात हमेशा अवाम के दरमियान में रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने और आपने अगर कामयाब किया तो जमात को कामयाब किया, किसी फर्द को या किसी शख्स को कामयाब नहीं किया। ये फर्क है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में। और आप देख रहे हैं कि पिछले 4 साल में चाहे असेंबली में हो, पार्लियामेंट में हो, या फिर नुक्कड़ पर हो या रोड पर हो, या अदालत में अगर कोई मसला उठाना पड़ा तो बराबर मजलिस आगे बढ़ी। और आप जानते हैं कि इसी बल्दी वार्ड में जब मरहूम सालार मिल्लत का जिस दिन इंतकाल हुआ उस दिन रात में चिंतल बस्ती में इसी घाट में वहां पर जो गड़बड़ हुई, तो उस रात में मुताल्लिक़ा हमारे सदर मुतमदीन की नुमाइंदगी वहां पर रही, रुकन बल्दिया की रही, फिर वहां पर मैं भी गया, और उसके बाद रुकन बल्दिया ने बराबर उस मुकदमे की पैरवी की, राशिद साहब भी उसमें थे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकदमे में कामयाबी हासिल हुई। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर यह काम किया गया। साथ ही साथ जहां कहीं भी कोई बुरा वाक़या हुआ, चाहे पुलिस की तरफ से हो या टास्क फोर्स की तरफ से हो, मजलिस फौरन वहां पर पहुंचकर नुमाइंदगी की। अगर हमारे सदर मुतमदीन को किसी किस्म की तकलीफ हुई तो यकीनन उस ताल्लुक से भी और भी काम करना चाहिए, मगर बराबर मैं कहूँगा कि नुमाइंदगी की गई। तो ये जमात हर सतह पर, हर मैदान पर मजलिस काम करके आ रही है। पार्लियामेंट में हो तो मजलिस की आवाज बेबाक तरीके से गूंजती है, असेंबली में हो तो मजलिस की बेबाक आवाज गूंजती है। आसाम में अगर कहीं गड़बड़ होती है, लोग बेघर होते हैं, तो मजलिस वहां पर जाती है। आज आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में भी, हमारे मुल्क में बहुत बड़े उत्तराखंड के हिस्से में बहुत बड़ी तबाही हुई, बर्बादी हुई, वहां पर ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना ताउन पेश कर रही है। तो ये तमाम चीजें आप इनको सामने रखिए, और हमको अपनी जमात को मजबूत करना है, अपनी आवाज को मजबूत करना है। बहुत से लोग बहुत सी बातें करेंगे, मगर अब वक्त आ चुका है कि हम इनको एक मुंह तोड़ जवाब दें, और इस बात को यकीन बनाइए और इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि हमको जमात को कामयाब करना है। आज हर मैदान में मौजूदा रियासती हुकूमत
जो बरसर इक़्तिदार जमात है कांग्रेस वो नाकाम हो चुकी है। आज अखबार में आया कि और करीब 550 करोड़ का बोझ बर्फी के बिलों में इजाफा हो गया, यानी फ्यूल सरचार्ज लगाया जाएगा। ये जो हमारा हैदराबाद का इलाका है वो सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के तहत आता है, तो यहाँ पर करीब 260 करोड़ रुपए का बुरका बरस बोलते। हम आसाम में अगर तबाही हुई तो ये नहीं देखे कि हम मुसलमान थे, अगर उत्तराखंड में तबाही हो रही है या हो गई या लोग परेशान हैं तो ये नहीं देखे कि वो हिंदुओं के एक मुकद्दस आस्थाना है, वहां पर उनका इबादतगाह है 4 धाम के नाम से। हम नहीं देखा कि वहां इंसानों की तबाही हुई है, मगर ये तेलुगु देशम के लोग जब गुजरात में तबाही और बर्बादी हो रही थी, जब 1 साल 1.5 साल तक करीब 3.5 लाख लोग जिनका मजहब इस्लाम था वो अपने घरों से बेघर होकर रेफ्यूजी की जिंदगी गुजार रहे थे, वहां पर तेलुगु देशम के कोई लोग नहीं गए। तो हमको ये नहीं हमारी शिकायत कि ये तुम्हारा सेकुलरिज्म जो है वो सही नहीं है, वो झूठा है, और तेलुगु देशम को इसी वजह से आज तक तेलुगु देशम इख्तिदार से दूर रही। और इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस तरह के दोगुनी पॉलिसी अख्तियार करने वालों को हम इनका ताक़ुब करेंगे। मगर बहरहाल ये बहुत सी चीजें हैं जो जलसे होंगे, इसमें और भी खुलकर बयान होगा, मगर मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि जमात को मजबूत करिए, जमात से वाबस्ता रहिए। हमारे अराकीन असम्बली की तादाद में और इजाफा होना चाहिए, और जब तक हम सियासी तौर पर मजबूत नहीं होंगे, हमारे बहुत से मसाइल हैं। यह मत समझे कि सिर्फ नामपल्ली असम्बली हल्के तक, बल्कि पूरे आंध्र प्रदेश में हमारे मसाइल हैं, इनकी आवाज हमको बनना है, इनके मसाइल के हल के लिए तलाश करना है। ये बहुत निजाम कॉलेज ग्राउंड अवामी जलसों के लिए एक तारीखी अहमियत रखता है, जहां पर साबिक में भी कई अहम जलसों का इनेकाद अमल में आया और यहां से कई तारीखी ऐलानात करने का रिकॉर्ड है, जहां से कौम के बड़े बड़े कायदीन इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और दूसरों ने अपनी तकरीरें की। आज भी यहाँ पर एक अजीम और शान जलसे अपने शबाब पर है और मुख्तलिफ कायदीन मुखातिबत कर रहे हैं। इस जलसे में शरीक होने के लिए मुख्तलिफ कायदीन अपने अपने अंदाज में जलसे में जुलूस की शक्ल में आ रहे हैं। जाना रेड्डी मिनिस्टर ने एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर बाजे के साथ अपने हामियों के हमरा निजाम कॉलेज ग्राउंड पहुंचे। कर्नूल में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी कायद वेंकैया नायडू ने कहा कि तेलंगाना कायदीन अलहदा तेलंगाना का जज्बाती नारा लेकर तेलंगाना के आवाम को गुमराह कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई नौजवान खुदकशी करते हुए अपनी जानें खो बैठे हैं। निजाम कॉलेज ग्राउंड पर तेलंगाना कायदीन का जलसा भी इसकी एक कड़ी है, इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। रियासत तेलंगाना का क़याम कांग्रेस के बस की बात नहीं। అంతర్జాతీయంగా ఒకప్పుడు వేగవంతంగా ముందుకు వెళ్తున్న దేశం ఇవాళ తిరుగుమలలో పడిపోయింది, వృద్ధి రేటు తగ్గిపోయింది, జీడీపీ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి ప్రభుత్వంలో 8.4% ఉంటే అది ఇవాళ 5% పడిపోయింది। మన్మోహన్ సింగ్ గారు, మోంటెక్ సింగ్ గారు, ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు, చిదంబరం గారు అందరూ ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలు। వాజ్పేయి గారు ప్రారంభించినప్పుడు 4% ఉన్న అభివృద్ధి రేటు ఆయన। आज निजाम कॉलेज ग्राउंड पर एक नौजवान के जिस्म पर तेलंगाना हमारा हक है, इसको हम लेकर रहेंगे, इसके लिए हमें खुदकशी करने की जरूरत नहीं, तहरीर किया हुआ था, स्टेज पर दाखिल हुआ और इसका यह मुजाहरा सारे लोगों की मरकज़ निगाह बना। एसी घाट के इलाके में वाक़े खदीम दरख्त के गिर जाने से 3 मकानात मुनहदिम हो गए हैं। यह हादसा रात 3:30 बजे के करीब पेश आया। किसी भी तरह का जानी नुकसान तो नहीं हुआ है। इतला मिलते ही रुकने असम्बली विरासत रसूल खान, कारपोरेटर यास्मीन सुल्ताना, मुकामी लीडर अकबर, हबीब, सैयद रिजवान, मोहम्मद नासिरुद्दीन मुकामी हादसा पहुंचकर वहां पर मौजूद मुतासरीन से मुलाकात की। पोस्ट ऑफिस की अदम मौजूदगी की वजह से वनस्थलीपुरम के आवाम को मुश्किलात का सामना था। अब मरकजी मिनिस्टर पुरंदेश्वरी के हाथों पीएनटी कॉलोनी वनस्थलीपुरम में एक नई इमारत में पोस्ट ऑफिस का इफ्तिताह अमल में आया, जिसकी वजह से आवाम में खुशी देखी गई। आज तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेसी कायदीन ने खुतबुल्लापुर से निजाम कॉलेज ग्राउंड तक मोटरसाइकिल रैली का एहतमाम किया है और तेलंगाना सभा के नाम से निजाम कॉलेज ग्राउंड पर एक जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया है।
इस जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेसी कायदीन ने कहा कि हम तेलंगाना पर हाईकमान के फैसले को कबूल करेंगे। हमें उम्मीद है कि हाईकमान कोई मुनासिब और काबिल कबूल फैसला करेंगे। प्रेस क्लब बशीरबाग में एक जलसे का इनेकाद ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किद किया गया। इसमें आबिद रसूल खान चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन, एम.ए. वहीद सुबकदोश एमडी और अजीज पाशा साबिक एमपी ने शिरकत की। अब्दुल रशीद सेक्रेटरी तंजीम ने अपनी सालाना रिपोर्ट पेश की। इसमें माइनॉरिटी के लिए मुख्तलिफ फलाही कामों के लिए मुफीद मशवरे दिए गए। इसमें माइनॉरिटीज के जो प्रॉब्लम्स है उसमें खास जो टॉपिक्स पे यहाँ पे डिस्कशन होने जा रहा है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग और फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये तीन जो बहुत ही अहम मुद्दे हैं इनके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन होने जा रहा है। मैंने चूंकि 7 महीनों का एक अरसा मेरी वाइस चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर से मिला है, तो मैं यहाँ पे सारे डेलीगेट्स को ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो रियासती हुकूमत है वो माइनॉरिटीज वेलफेयर के लिए क्या कर रही है और जो हुकूमत हिंदुस्तान, हुकूमत हिंदू सेटलमेंट की तरफ से जो असिस्टेंस आ रही है वो भी क्या है, मैं यहाँ पे क्योंकि आप जैसे जानते हैं एजुकेशन पे उत्तर प्रदेश का ज्यादा ध्यान है। इसके लिए जो बजट इस साल का मख्तस किया गया उसमें 70% एजुकेशन में जा रहा है। तो जो पसमानदगी अक़लियतों की है उसको तालीमी तरक्की के जरिए इसको हल करने की कोशिश। एलबी नगर में आज अवाम की जानिब से आर्मी जवानों और ऑफिसर्स की मुल्क और कौम के लिए ग्रां कदर जज्बात और कुर्बानियों की सराहना करते हुए एक जलसे का इनेकाद अमल में आया। दुश्मन मुल्क से जंग का मौका हो या सरहदों की हिफाजत का मामला हो या मुल्क के अवाम किसी नागहानी सूरत हाल से दो चार होकर हादसात का शिकार हों, आर्मी जवानों की खिदमत से इस्तेफादा किया जाता है और ये अपनी जान पर खेलकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए कौम की खिदमत करते और शहीद भी होते हैं। इसीलिए वो कौम के हकीकी हीरो हैं जिन्हें कौम सलाम करती है। वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन हुदूद में मार्च के महीने में कुछ नामालूम अफराद ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुजस्सिमा मुनहदिम कर दिया था, जिसकी दोबारा तनसीब अब तक अमल में नहीं आई। इस सिलसिले में दलित तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन के रूबरू धरना मुनज़्ज़िम किया और मुतालबा किया कि मुजस्सिमे को अपनी जगह पर जल्द अज जल्द नस्ब किया जाए। वनस्थलीपुरम पुलिस ने मामले की जल्द अज जल्द यकसुई का तयखुन दिया है। नाजरीन, अभी वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस, याद रखें कश्मीर हाउस बेगम बाजार हैदराबाद। दुबई में 20 साल तक तहलका मचाने के बाद अब आपके ज़ौक़ की तकमील के लिए दुबई होम इंटीरियर्स हैदराबाद शहर में खुल चुका है। एक ऐसा सेंटर जहां मुनफरिद और दिलकश इंपोर्टेड फर्नीचर दस्तयाब है। शानदार और बेहतरीन सोफा सेट्स, डाइनिंग सेट्स, बेडरूम सेट्स, वुडन फ्लोरिंग और रिमोट कंट्रोल ब्लाइंड्स। ऐसा कलेक्शन जो आपके घर और ऑफिस की तमाम जरूरियात की तकमील करता है। दुबई होम इंटीरियर्स, आज ही तशरीफ लाइए। हमारा पता, हमारा टेलीफोन नंबर, दुबई होम इंटीरियर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन। शमा जो रोशनी फैलाए,
اور شمع باسمتی رائس ہر تقریب کی شان بڑھائے، پورے خاندان کا بھروسہ جس پر ہو اور ہر کسی کی پسند بن جائے۔ شمع کلاسک باسمتی رائس، اس کا دانہ دانہ الگ جو ہر دعوت کی لذت بڑھائے۔ 25 کلو، 10 کلو، 5 کلو اور 1 کلو کے بیگ میں اب ہر سپر مارکیٹ، جنرل سٹور اور کرانہ سٹور میں دستیاب ہے۔ شمع کلاسک باسمتی رائس۔ وقفے کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ حیات نگر میں واقع ایس بی آئی کے ایک اے ٹی ایم میں بینک کے عہدیدار اے ٹی ایم میں رقم ڈال کر اس کو لاک کرنا بھول گئے۔ ان کی اس لاپرواہی اور غفلت سے رقم چوری ہو سکتی تھی، لیکن وہاں کی عوام نے فوری پولیس کو اس کی اطلاع دی، جس پر پولیس نے اسے اپنی تحویل میں لے کر بینک کے عہدیداروں کو اطلاع دی۔ چندہ نگر پولیس اسٹیشن حدود میں بی آر انڈین گیس ایجنسی کے گودام کے قریب ایک نالے میں 3 دن کی ایک لڑکی کی نعش دستیاب ہوئی۔ پولیس نعش کو حاصل کرتے ہوئے قریب کے نرسنگ ہومز میں اس تعلق سے دریافت کیا تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ کس نے اس لڑکی کو مار کر نعش کو نالے میں پھینک دیا ہے۔ پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ سماجی گڑا پریس کلب میں آج ایس آئی او کی جانب سے ایک میٹنگ کا انعقاد عمل میں آیا۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن کا پارلیمنٹ میں 26 اگست 2009 کو ایک بل پاس ہوا تھا۔ اس کے 3 سال گزرنے کے بعد بھی اس کا کوئی اثر عوام میں نظر نہیں آتا۔ ملک میں تقریباً 1.7 کروڑ 6 سال سے 14 سال کی عمر کے لڑکے تعلیم سے محروم ہیں اور جو اسکول نہیں جاتے، جن کی آبادی دیہات میں 66% اور شہروں میں 33% ہے۔ ملک میں 18 لاکھ اسکول ہیں جن میں ٹیچروں کے کئی جائیدادیں خالی ہیں۔ ایس آئی او نے مطالبہ کیا ہے کہ ان اداروں میں 25% جائیدادوں کو بیکورڈ اور غریب عوام کو محفوظ کرنے کا مطالبہ کیا، جو کہ کرناٹک میں عمل کیا جا رہا ہے۔ 33% جو 6 سے 14 سال کی عمر کے بچے ہیں، ان میں تقریباً 3 لاکھ حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق اور مختلف این جی اوز کے سروے کے مطابق 18 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، یعنی آندھرا پردیش کے اندر 12 سے 18 لاکھ ایسے بچے ہیں جو ابھی تک اسکول کے اندر داخل نہیں ہوئے یا وہ اسکول میں آئے اور ڈراپ آؤٹ ہو چکے ہیں۔ 3 سال بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد، جو ہم کہیں گے کہ تقریباً 15 سے 18% 6 to 14 ایئر نوجوانوں کی تنظیم ٹیلنٹ ہنگر کی جانب سے میر محتشم عثمان باڈی بلڈر کو تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر ایم پی انجن کمار یادو، سمن تیلگو فلم ایکٹر، افتخار این آر آئی، خلق الرحمان کانگریسی قائد کے علاوہ دیگر افراد بھی موجود تھے۔ میر محتشم عثمان کے اپنی تقریر میں کہا کہ ان کے والدین کی دعاؤں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ میں آج اس مقام تک پہنچا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کے مجھے جو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں مجھ کو اللہ کی طرف سے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو لوگ مجھ کو سپورٹ کیے یہاں تک 2001 میں اس پروگرام کے لیے انجن کمار یادو صاحب جو سیکولر ملک ہے اور یہاں پہ جو ہم لوگ جو مل جل کے رہتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی، اس کی بڑی مثال ہے ہندوستان۔ اس کے لیے میں اور ڈی سی پی سینٹرل زون کملا سن ریڈی نے نظام کالج گراؤنڈ پہنچ کر تلنگانہ سبھا کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ دیگر پولیس عہدیداران بھی موجود تھے۔ خبروں کے اختتام پر دوبارہ ایک نظر اہم خبروں پر۔ سرخیوں کے پیش کردہ ہیں دبئی ہوم انٹیریئرز، بندر ہلز روڈ نمبر 1 نیئر کراچی بیکری۔ مجلس پارٹی کے صدر اسد الدین اویسی نے حلقہ اسمبلی نام پلی کے چندل بستی میں ترقیاتی کاموں کا کیا افتتاح۔ اے سی گارڈ میں قدیم درخت کے گرنے سے 3 مکانات منہدم، کوئی جانی نقصان نہیں۔
चंदा नगर इलाके में नाले से एक नौमौलूद लड़की की नाश बरामद, पुलिस को लड़की के मां बाप की तलाश। कांग्रेसी कायदीन अलहदा तेलंगाना का जज्बाती नारा देकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं, वेंकैया नायडू का बयान। और निजाम कॉलेज ग्राउंड पर आज कांग्रेस का तेलंगाना सभा, मुख्तलिफ कायदीन ने अपने अपने अंदाज में की जुलूस की शक्ल में शिरकत। इसी के साथ ही मेट्रो और दो खबरें यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। समीना खानम को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें कश्मीर हाउस बेगम बाजार हैदराबाद। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तियाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस।